شکریہ. ہمارے جو باقی زونل پریزیڈنٹ ہیں نیاز دورہ صاحب وہ جائیں نصر اللہ صاحب پہلا دورہ ہے ہمارے مرزوما کی طرف سے. میں اپنے چیئرمین کو پیش کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے نذرانہ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی طرف سے. تھینک یو سر. کہ وہ اطمینان سے تشریف رکھے. ہمارے یہاں پر آج اس کاروان کو جوائن کرنے والے ہیں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنی بہن وہ یہاں پر آئے اور اس آرگنائزیشن کو جو ہم سب کی آرگنائزیشن چیئرمین صاحب کو گزارش ہے کہ وہ خود اور اس کے بعد ہمارے جو مہراج صاحب نار ان کے ساتھ ہیں خالد صاحب کے ساتھ. ہمارے جندوسا کے عرفان احمد نور صاحب. شاباش مبارک. اس کے بعد ہے موسٹ ویلکم. السلام علیکم. مبارک مبارک مبارک. بارہمولہ زون سے وابستہ ہمارے نوجوان ساتھی سبھی کا بہت بہت شکریہ. امتیاز صاحب ہمارے خلشے کپوارہ کے بشیر احمد خان صاحب سبھی زوردار باتوں سے ان کا سوالت ہے. یہ کپوارہ سے آپ پر ابھر رہی ہے اور جو آپ کی عمر اور احساسات کے پر سوالی کر رہی ہے. کھیل نام مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے. نیچے بیٹھ جائیں جو نے یہاں بیٹھ کیا ہے وہ نیچے بیٹھ ڈپارٹمنٹ کے ہونہار ساتھی ڈائنامک پرسنالٹی جنہوں نے آج شاہ فیاض صاحب کی قیادت کو اس گھر میں وہ آئے جو ان کا اپنا گھر ہے. اس گھر میں جو گھر ہے وہ آئین کے لیے کھلے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے. جو بھی اس گھر میں آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے بغیر کسی بھید بھاؤ کے. وہ اس گھر میں آ کر اپنی جو ڈیوٹی ہے اپنی جو ریسپانسبلٹی ہے ایز اے ریسپانسبل سٹیزن. ہمارے یہاں پر قائدین ہیں میں انہی کو ایک ایک کر کے. آپ جانتے ہیں کہ ٹیچرز ایسوسیشن جس کی پرسنالٹی نوجوان قائد جنرل سیکرٹری خاتم قیوم صاحب, سید افتخار صاحب, پیر نثار صاحب, ہمارے کپوارہ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یہاں پر ہیں, ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری یہاں پر ہے سب مشتاق. پچھلے سال ہم نے جون میں دہلی جا کے جنتر منتر پہ ایک پروٹیسٹ کیا. یہ خالی جموں کشمیر امپلائیز کی بات نہیں ہے بلکہ سارے ہمارے ہندوستان کے امپلائیز. دیکھیے آپ کا بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ ہم پچھلے 3 سال سے لگاتار جس میں ہماری آرگنائزیشن جس میں ایز اے پریزیڈنٹ ہوں جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی امبریلا آرگنائزیشن ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی اور پرٹیکولرلی جموں کشمیر ٹیچرس ایسوسیشن جہاں میں چیئرمین ہوں. ہماری جو ٹیم ہے چاہے وہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہو ساؤتھ کشمیر, نارتھ کشمیر, سینٹرل کشمیر, ہم 3 سال سے لگاتار سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے ہماری آرگنائزیشن تھی, کوئی این جی او بات نہیں کرتی تھی, کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشن نان گورنمنٹ آرگنائزیشن بات نہیں کرتی تھی. جب ہم نے ایک اسٹیپ اٹھایا اور ہم نے پیدل مارچ اکراس دا ویلی کیا اگینسٹ دا ڈرگ ابیوز اینڈ انکریزنگ ریٹ آف ڈرگ مینس ان دس سوسائٹی. جو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے پیرنٹس کے بعد جو ٹیچر کا ایک اہم رول رہتا ہے جس کے پاس جو یہ بچے رہتے ہیں, تو ہم اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ اس میں بھی اپنی
अपना कंट्रीब्यूशन थे। और इसके साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे सोशल जैसे ब्लड डोनेशन कैंप एवरी ईयर हम 2 टाइम्स करते हैं, इस साल भी किए, और साथ साथ सैनिटेशन ड्राइव। आज का जो प्रोग्राम है बारामूला में वो उसकी एक कड़ी है। जैसे पिछले दिनों हमने साउथ कश्मीर में किया, सेंट्रल कश्मीर में किया, आज नॉर्थ कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। बारामूला का इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ रहते हैं, हर किसी फील्ड में कंट्रीब्यूशन है। यहाँ के टीचर जो हैं फर्टाइल लैंड से हैं, तो हमने ये समझा कि हम अपनी तरफ से इन इश्यूज़ पे बात करें, और कल को जब स्कूल खुलेंगे तो हम अपनी तरफ अपने स्कूल में अगर हमारी तरफ से एक ही एम्बेसडर बन के जाए एक टीचर, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन दे अपने बच्चों को इन सोशल इवल्स से, जैसे साइबर क्राइम्स हैं, ड्रग एब्यूज़ है, या सैनिटेशन पे बात हो जाए। ओवरऑल हम ये जो है ये मिशन अपना जो है जारी रखेंगे। बारामूला में आज का प्रोग्राम इसी से वाबस्ता है। चेयरमैन साहब, यहाँ पे 2-3 तंजीमें हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता एक ही हो जाए, एक ही प्लेटफॉर्म में? देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैन पावर जो है 1/3 है जम्मू कश्मीर का। 4 लाख एम्प्लॉयज़ में 1/3 मैन पावर जम्मू कश्मीर का गवर्नमेंट का 2.25 लाख इसमें है एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे कैडर सिस्टम है, बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं। कभी कभार क्या होता है कि किसी को लगता है हमारी बात पहले नंबर पे नहीं आई, दूसरे पे आई, तीसरे पे आई, तो ये भी एक वजह होती है। दूसरी वजह होती है कि एक विजन की बात होती है, आइडियोलॉजिकल विजन। हमारा विजन ये है, देखिए हमारी पहली प्रेफरेंस है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। सेकंड इज़ आवर ड्यूटीज़, उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ के इशूज़ हैं, दैट विल बी रेज्ड टू द कंसर्न्ड क्वार्टर। जब हल नहीं होते हैं तो हम सरकार को ये बोलते हैं कि हम अगर सरकार के लिए इतने काम करते हैं सोशल इश्यूज़ के बारे में, जो सरकार का भी एक पार्ट है, इसके साथ साथ अगर हम अपनी ड्यूटीज़ भी देते हैं तो आपको हल करना है हमारा काम। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे ही आज तक काम हल करवाए। अब जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, उनको मेरी ये दावत है, अगर हमारी आइडियोलॉजी आपको ठीक लगे, लोगों का काम भी करो, अपना काम भी करो, तो जुड़ जाइए। अब इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपनी ओपिनियन रहती है। हमारी ओपिनियन ये है, सबसे पहले सोसाइटी है, उसके बाद हम। शुक्रिया, थैंक्स सर। देखिए, आप जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उसका आज 1 डे कन्वेंशन यहाँ पर मुनक़िद हुआ, जिसमें हमारे मरकज़ी क़यादत, जिसकी क़यादत हमारे शाह फयाज़ साहब कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए, उनके साथी आए, और आपने देखा होगा कि कितने जमे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद था असातिज़ा किराम का और दूसरे मुलाज़मीन का। इसमें हमारे बहुत सारे जो हमारे यंग और एनर्जेटिक टीचर्स हैं और एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन किया, टीचर्स एसोसिएशन के साथ ज्वाइन किया, क्योंकि आज के दौर में और आज के डेट में अगर हर एक मुलाजिम को ये लगता है कि इस वक्त अगर कोई रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन है, और जो रिवायती ट्रेड यूनियनिज़म है उसका खात्मा हो चुका है, क्योंकि जो रिवायती ट्रेड यूनियनिज़म है वो सिर्फ अपने पेट के लिए बात करते थे, अपने ज़ाती मफादात के लिए बात करते, लेकिन जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने सोसाइटी को प्रायोरिटी दी है, और सोसाइटी में फैले जाने वाली जो ड्रग एब्यूज़ है, सोशल क्राइम्स हैं और दूसरे जो खराफात हैं, उनमें हम बात कर रहे हैं। उनको इरेडिकेट करने के लिए हम असातिज़ा को अवेयर कर रहे हैं, और हमारी प्रायोरिटी जो है वो बच्चा है। हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो बच्चे हैं, उनकी बेहतर तालीम और तरबियत किस तरह की जाए, उस सिलसिले में भी हमें आज यहाँ पर बात करनी है और कर रहे हैं, ताकि हमारे असातिज़ा जब मार्च में स्कूल खुलेंगे तो यही मिशन लेकर आगे जाएं कि हमारे बच्चे न सिर्फ बेहतर स्टूडेंट बने, बल्कि वो बेहतर इंसान बने। सबसे पहले अगर बेहतर इंसान बने तो वो बेहतर समाज की तश्कील करेगा। यही हमारा मिशन है। हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारी स्टेट, हमारा नेशन जो है वो ड्रग फ्री हो, वो क्राइम फ्री हो, और वो बेहतरीन समाज की तश्कील पाए। यही जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन का मिशन है, और एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी का मिशन है, जिसकी क़यादत शाह फयाज़ साहब कर रहे हैं। शुक्रिया। इशफाक साहब, यहाँ पे हमने बोर्ड देखा कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो वो क्या है? क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी का? ये एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉइज़ हैं, रहबर खेर है, वोकेशनल ट्रेनर्स है, जो हमारे कंटिजेंट पेड मुलाजमीन हैं, जो हमारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ हैं, वो सब हमारे साथ एफिलिएटेड है, इसीलिए उसको एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से मंसूब किया गया है। शुक्रिया सर जी। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, आज हमारा मेडन विजिट था यहाँ पे। आज कसीर तादाद की एम्प्लॉइज़ ने यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आज ज्वाइन किया। उस सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए थे। तो हमारे जैसे अभी इशफाक साहब बोल रहे थे, हमारा एक मिशन है, एक विजन है। हमारे इश्यूज़ हमारी प्रायोरिटी रहते हैं, साथ साथ हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं वो भी हमारी प्रायोरिटी रहते हैं। हमने काफ़ी प्रोग्राम पिछले कई सालों से ऑर्गेनाइज़ किया, हमने ब्लड डोनेशन किया, हमने पैदल मार्च किया। मकसद यही है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, जो हमारे ये सोशल क्राइम्स है या सोशल इश्यूज़ है, इनकी तरफ हमने ध्यान देना है। जो हमारे इंटेलेक्चुअल से एक टीचर का कलीदी रोल रहता है इसमें, अगर टीचर इसमें सामने आएगा तो मुझे लगता है कि हम इस मिशन को कर्ब कर सकते हैं।